Which IIM has the best sex ratio? ओके। और भाई जिंदा बिंदा खत्म हो गए तुम लोग। मैं तुम्हें बताया ना 400 रुपये के मैं जूते लेके आया था। हाय माई नेम इज डोची विद 2 eyes। आई गेट एंशियस व्हेन आई एम हाई। तो भाई साहब ये 2 दिन में फट के फिलावर हो गए हमारे जूते। Hello everyone, my name is Vikas and I hope all of you are doing absolutely gorgeous. So today I'm going to make a video regarding MBA. So what will I do? I will currently I'm on a website where people have asked some questions. So मैं क्या करूँगा, I will try to answer them for you. Or if you have any other question, you can comment it down below. And if I make any video in future, तो आपके लिए हम दोबारा से बना देंगे उसको. So the first question we have here is doing MBA from IIMs really worth it? The simplest answer is yes. Not from IIM. MBA is totally worth it. So what actually happens when you are in an organization and you are already at a very good place. और जैसे अगर आप बड़ी पोजीशन पर जाते हैं, सपोज़ कीजिए आप हार्डकोर इंजीनियरिंग के अंदर हैं, आपको मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं आप, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे बिकॉज आई वाज इन एन एडटेक। तो मैंने बहुत सारे केस देखे जहाँ पर 45, 50, 55 ईयर्स ओल्ड के जो लोग थे, दे वांटेड टू डू एन MBA जस्ट फॉर द नेम सेक। तो MBA क्या करता है, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू फॉर योर करियर. एंड द सेकेंड पॉइंट इज MBA is more like a bypass. So currently I am at a position, I am at a manager position, और अगर मैं MBA नहीं करता तो it would take me around 10 to 12 years to reach at this position currently I am here in. So 2 साल का मेरा MBA करके मेरे को इतना सारा गैप मतलब मैंने बचा लिया. तो definitely MBA is completely or totally worth it, I would say. But this answer cannot be absolute. Not only this answer, any answer cannot be absolute. It is applicable to majority of the population, like 90%, 95% people पर applicable होगा. ये लक्ष्मण रेखा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया तो ये सच्ची सच है. हर किसी का मतलब हर किसी के अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो आप लोग अपने विवेक से काम लें और लड़के लोग आस्था से भी काम ले सकते हैं. सॉरी फॉर मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स. Okay, now let's come to the main question, whether it is worthy enough to do your MBA from IIMs or not. The simplest answer is yes. Yes, it is worthy. The thing is that it will give you a lot of exposure in industry. और जब आप IIM में जाते हैं, वहाँ का करिकुलम इतना रिगरस होता है कि आप प्रिपेयर हो जाते हैं मतलब किसी भी चीज़ के लिए. थर्ड थिंग इज़ दैट ब्रांड नेम. जो टैग होता है ना IIM का, दैट इज़ वेरी पावरफुल. मतलब यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड से IIM टैग्स डू नॉट मैटर एंड दे आर द पीपल हु आर फ्रॉम IIMs. It is completely bullshit. If you are not in entrepreneurship, then your tags do matter. Even in entrepreneurship, they do matter. If you want to, take some funding from investors, and if you are from IIM, you will be having a better chance to get funding as compared to people who are not from IIMs or any premier college. So they do matter. I am not saying that MBA is like must to have degree, but it is definitely a good to have degree, right? सो वीडियो लंबी हो जाएगी, कंसेप्ट छोटे रखते हैं. इतना लंबा लंबा आंसर दूंगा 2 घंटे का आंसर क्वेश्चन, वो वीडियो बन जाएगी यार ये. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन फॉर गेटिंग MBA in IIM. Okay, so the thing is that if you are already graduated and you fucked up your graduation, then I would say you cannot do anything except targeting 100 percentile or 99.99 percentile in CAT. And but if you are a person who are graduated and you do not have a job, then I would suggest first of all get a job, because it will it will impact negatively on your candidature. बट हम मान भी लेते हैं कि अगर आपका IIM में हो जाता है तो उसके बाद when you will be sitting for your placements, then it will impact a lot. And the third thing is that if you are in graduation, then I would suggest please focus on your academics. आप सब कुछ भूल जाइए. कैट की प्रिपरेशन आप लास्ट ईयर में ट्राई कर सकते हैं, वरना आप जॉब के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बट अकेडमिक्स से सबसे ज़्यादा मतलब अपना फोकस कीजिए, बिकॉज अकेडमिक्स दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब जिस पोजीशन पर मैं हूँ इस पे मेरे को इम्पैक्ट नहीं करेंगे मेरे एकेडमिक्स, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एकेडमिक्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है. सो पीपल हु आर सेइंग दैट एकेडमिक्स योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन योर लाइफ, जो हैं उनकी बातें मत सुनो आप लोग, ठीक है. अपने फोकस करो अपने एकेडमिक्स के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्ट ले सकते हैं, और मतलब जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा. मतलब डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करेगा, बट इज समवेयर इट विल इम्पैक्ट यू और योर कैंडिडेचर इन PI फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल योर IIM इंटरव्यूज़. और उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाएंगे वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये. सो इन चीज़ों पर आप फोकस कीजिए.
सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ वंस लाइफ आफ्टर एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद? यार IIM अहमदाबाद के बाद तो मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें, बट कोझिकोड के बाद लाइफ जैसी चल रही थी पहले वैसी ही चल रही है। लाइफ में थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, हाँ पॉजिटिव चेंज हुआ है। आपको MBA के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जो कि आपका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देती है। बट अगेन वर्क लाइफ बैलेंस फक्ड अप हो जाता है बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर। सो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, बट या जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाती है अब। मतलब लैम्बोर्गिनी और फरारी तो अभी नहीं मिलेंगी, बट या डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नॉर्मल लोगों से आपका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो या दैट इज़ अ गुड थिंग। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पैकेज आफ्टर डूइंग एन MBA फ्रॉम एन IIM? The answer is very difficult. The thing is that the spectrum is very very high. So क्या होता है, there are people who also got around 6 to 7 lakh rupees of of package from BBIMs, and there are also people who got around 50-60 lakh rupees of domestic package from IIM ABC. So स्पेक्ट्रम आप देखिए 6 लाख से 60 लाख का है, तो आप इसी पे फोकस मत करो। आई वुड से ये सब बेकार की बातें हैं। आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा जितना आप ग्रेजुएशन कमा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केस में आपको उससे अच्छा ही मिलेगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो अपने आप कैट पर फोकस कीजिए, ये सब बकलोली छोड़िए आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच IIM हैज़ द बेस्ट सेक्स रेशो? ओके, जो ये क्वेश्चन पूछा है डेफिनेटली एक इंजीनियर ने पूछा है, और भाई साहब हमारे मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हैं। तो भाई देखो यार, जब तुम कैट दोगे ना, तो कैट में अराउंड 2 लाख लोग तो बैठते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम कर लेते हैं कि 2 लाख लोग बैठते हैं वहाँ पर। सीट अराउंड 5000 होती हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 5000 बाय 2 लाख, सो 5/20, 5/1/4, 2.5, यानी 2.5% सीट्स पे आपका मतलब क्लियर कर लेते हो। अगर आप 2.5% में एक सीट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर है। आप किसी भी मतलब MBA कॉलेज में जाएंगे, प्रीमियर MBA कॉलेज में जाएंगे, वहाँ 30% सेक्स रेशो तो नॉर्मली होता है। मतलब कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट अगर आप 30% आपका सेक्स रेशो है तो 30 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना हुआ? 2.5, 10, 25, 5, 12। सो 12 टाइम्स तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे चांस हैं यार। ये सब फालतू की बातें छोड़ो, कैट पे ध्यान दो, ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है। तो वैसे IIM रोहतक, IIM कोझिकोड इस साल सबसे अच्छा सेक्स रेशो यहीं का था। तो विच IIM इज़ द बेस्ट? देखो यार, इस पे तो मैं नहीं बोलूँगा विच IIM इज़ द बेस्ट, बट कैटेगरी वाइज अगर हम बोलें तो IIM ABC तीनों एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, देन L, देन KI, देन S, देन आपके न्यू IIMs एंड बेबी IIMs। सो आई विल नॉट से विच IIM इज़ द बेस्ट, बिकॉज बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है और वो बेबी IIMs या न्यू IIMs या LKI के अंदर हैं। सो बट डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि कोई IIM अहमदाबाद छोड़ के IIM अमृतसर नहीं जाएगा, बट हाँ, ऑल IIMs आर गुड IIMs, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई IIM फी इज़ सो हाई? ओके यार देखो, इनिशियली क्या होता था, जहाँ तक आई माइट बी रॉन्ग, तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा इस आंसर की। इनिशियली क्या होता, गवर्नमेंट फंड करती थी IIMs को, तब उस समय IIMs की फ़ी काफ़ी नॉमिनल रहा करती थी, काफ़ी सिंपल साधारण सी फीस रहा करती थी। बट अभी IIMs जो है इंडिपेंडेंट बॉडी बन गए हैं, तो इस वजह से इनकी फ़ी जो है मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे IIMs का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है, और गवर्नमेंट फंडिंग है नहीं, तो इसलिए शायद फ़ी बढ़ा देते हैं। बट प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट फीस, मतलब वर्थ है। मैं ये कभी रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने अपना 20 लाख रुपए दे के IIM करा, मैं 20 लाख का कुछ और कर सकता था। वर्थ है, तो आप इस बारे में भी मत सोचो। आप बेसिकली कुछ मत सोचो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई IIML इज़ कॉल्ड हेल? देखो यार, पता नहीं क्यों कहते हैं, मतलब हर IIM में आपको हेल जैसे फीलिंग होता है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपको 3-4 घंटे की नींद मिलती है। बट IIM कोझिकोड की अच्छी बात ये थी कि हमारी क्लास 9:15 से स्टार्ट होती हैं, और IIM लखनऊ की क्लास शायद 8:45 से स्टार्ट होती हैं। तो आपको आधा घंटा बड़ा कम लग रहा होगा कि आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है, बट आप जब 4 बजे सोते हैं ना रात को, तो ये आधा घंटा बड़ा अच्छा लगता है आपको। बाकी सब IIM आपको हेल जैसे ही लगेंगे। बाकी मैं इसको कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम IIM लखनऊ। करंटली आई एम इन लखनऊ बाय द वे। So the next question is IIM versus FMS, which one to choose? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर कोई भी एक क्या बोलते हैं उसे एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता इसका।
अगर आपको मतलब अपना पैसा बचाना है, आपको फर्स्ट ईयर से ही चाहिए कि भैया पैसा पैसा हो जाए मेरे पास, तो डेफिनेटली एफएमएस। क्योंकि शायद ही कोई एक दो कंपनी या रोल ऐसे होंगे जो एफएमएस में नहीं खुलते और एबीसी और एल में खुलते हैं। बट वहाँ का जो मतलब आपकी 1 लाख रुपए में एमबीए हो जाएगी, यहाँ पे आपको 25-26 लाख रुपए की एमबीए होगी, साथ में अलग एक्सपेंसेस अलग हैं। ठीक है, तो जब बंदा मतलब आई एम एबीसी या एलकेआई का अपना इंस्टॉलमेंट्स भर रहा होगा, अपना लोन भर रहा होगा, आप एक कार खरीद सकते हैं 20-25 लाख की अच्छी सी एफएमएस के बाद। और अगेन एफएमएस का जो है रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, IIM-ABC मतलब सारे IIMs रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे। और आपको मतलब क्या बोलूँ, जैसे जितनी बड़ी IIM-ABC LKI की लाइब्रेरी है ना, शायद इतना बड़ा पूरा एफएमएस है। तो आप मतलब लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी होंगी एफएमएस की बिल्डिंग से। दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। एकेडमिक वाइज तो मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे को नहीं लगता, आई माइट बी रॉन्ग, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ, एफएमएस का बैच छोटा होता है तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा इफ़ यू आर नॉट अ गुड परफॉर्मर, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो विद एफएमएस। मतलब ऐसे कौन बोलता है। सो व्हाट इज़ आस्क्ड इन पीआई इन IIM? ओके, अगेन इसका कोई आंसर नहीं है, डेफिनेटली इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसा बोल रहे हैं कि आपको बता देंगे कि आपको प्रिपेयर कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो मेरा IIM लखनऊ का इंटरव्यू था वो बंदा मतलब सिगरेट पी के आया था, उसने मेरे मुंह के ऊपर करके सिगरेट, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो IIM लखनऊ का जो मेरा इंटरव्यू था उसके अंदर मेरा पूरा बिजनेस साइड में पूछा गया था, मतलब बिजनेस के बहुत डेंजरस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी तो मेरे को याद नहीं है। और जो मेरा IIM शिलोंग का इंटरव्यू था उसके अंदर पूरा टेक्निकल पार्ट हुआ था, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। और जो मेरा IIM कोझिकोड का था उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट बोलूँगा, मतलब फिलॉसफी पर ज़्यादा था वो। तो अगर मैं आपको अपना IIM का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो दे आस्क मी व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, मतलब पहले इंट्रो से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि फेवरेट स्पोर्ट कौन सा या गेम कौन सा खेलते हो आप। सो आई टोल्ड देम दैट आई लव चेस। तभी स्टार्ट किया था नया नया खेलना। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा हु इज़ योर फेवरेट पर्सन इन चेस और ग्रैंड मास्टर वगैरह। तो आई टोल्ड देम आई लव मिखाइल ताल। फिर उसके बाद उस पर उन्होंने बकचोदी करी बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी थी उन्होंने। हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने ये बोला था, व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग अकॉर्डिंग टू यू। तो फिर मैंने 15-20 सेकंड टाइम लेके मतलब आई टोल्ड देम इट इज़ आइडेंटिटिज्म विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। फिर उनको एक्सप्लेन किया कि मतलब आप कहीं भी देख लो, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटिज्म है। फिर हिंदुओं के अंदर भी कास्टिज्म होता है बहुत ज़्यादा, वो भी आपस में लड़ते हैं, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटिज्म है। IIM लखनऊ वाले भी लड़ते रहते हैं IIM-ABC वालों से, IIM-K वाले लड़ते रहते हैं IIM बेंगलोर से, या फिर IIMC वाले लड़ते रहते हैं XLRI से। तो सब क्यों है, आइडेंटिटिज्म की वजह से। तो इस पर हम नहीं जाते हैं। तो इसका कोई क्या बोलूँ, मतलब फुल प्रूफ फंडा नहीं है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, राइट। तो आई गेस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बताना, नीचे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं सेकंड वीडियो शायद बना दूँ, राइट। बाय, टेक केयर।